आज की वीडियो में I'll give you a system which will help you remember everything that you read, study or learn. And this is a system that I've used over the last 15 years to crack some of the toughest exams in the country, be it IIT JEE in 2010 or CAT in 2015 or UPSC Civil Services exam in 2017 and 2018. Now, the reason why this method works so well is because it breaks down the process of reading into two parts. The first part is the consumption part, where you're actually reading, watching videos or doing the ingesting of information. And the second part is digestion, जहाँ पे we are taking some time to process the information that we have read. And both of these parts are important, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, लोग फोकस करते हैं सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन पे and they think कि the more we consume, the more we read and reread, it is going to improve our learning outcomes. But इससे होता क्या है, we start watching videos at 2x speed, we start trying to read faster, and all of these things end up doing nothing, because that is not how learning works. And once you understand how learning works, you will realize why this system works so well. Because it is not important हमने कितना information ले लिया है अंदर, it is more about हम कितना information अपने अंदर retain कर पा रहे हैं. And in this video, I'll be teaching you a process for both, how to improve your process of consumption and how to retain more of what you have read. But before we proceed any further, it is important to ask this question ki, is it even possible to remember everything that you have read? The short answer to that question is no. But here's the secret. The goal should not be to try to remember everything that you have read in the first place. Why do I say that? Because we know the story of the man who could indeed remember everything that he had read. ये story है सोलोमन चेरेशेव्स्की की, and सोलोमन चेरेशेव्स्की की कहानी इतनी वाइल्ड है कि the father of modern neuropsychology, Dr. Alexander Luria, wrote a book about him called The Mind of the Mnemonist. And Solomon Cheryshev was somebody who could remember complex mathematical formula, long series of numbers, poetry in languages that he did not know, all after a few minutes of trying to remember them. And let's face it, Solomon Cheryshev was a genius. But Solomon की extraordinary memory was enabled by a medical condition called synesthesia. Now synesthesia में होता क्या है कि आपका एक सेंस आपके दूसरे सेंस से बहुत ज़्यादा interconnected हो जाता है. Meaning whenever Solomon heard a sound, he could also see a color. Whenever he saw a color, he could also taste something. Whenever he felt a touch, all the other things were also moving around. And for him, it was so intense कि जब भी वो कोई चीज़ देखते थे, कोई वर्ड देखते थे, कोई नंबर देखते थे, तो उनके माइंड में एक इमेज आती थी. एंड दिस एबिलिटी ऑफ सीइंग इमेजेस फॉर वर्ड्स enabled him to have such a brilliant memory. But here's a question. If you and Solomon Cheryshev had to give a test, who do you think would perform better? Now, the answer to this is it depends on the test. You see, despite his superhuman memory, Cheryshev struggled with reasoning and problem solving. Which means कि अगर आपका एग्जाम जो है वो KBC टाइप या UPSC prelims टाइप MCQ टेस्ट है, तो he will definitely have the edge. But if it is an exam that tests higher orders of thinking, abstract thinking, problem solving, analytical and evaluative type of exams, so then you might really have a chance. The reason why you might do well in mains is because Solomon Cheryshev की amazing memory के साथ आई थी कुछ amazing limitations. Limitations that he was not able to handle abstract concepts. Limitations in that he was never able to forget bad memories. But if you're a UPSC aspirant, you realize कि भाई UPSC prelims और mains दोनों चीज़ें आपको निकालनी है. Now prelims is where you require a lot of remembering, a lot of memorization. So we will deal with how to do that better in this video. And at the same time, you also want to be prepared for the analytical and evaluative stage of UPSC mains. तो उसके लिए हमें कैसे तैयारी करनी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि आप ये वीडियो देख ही इसलिए रहे हो because you want to do well in both of these stages of this exam. But practically speaking, it is next to impossible कि मैं जो भी चीज़ पढ़ रहा हूँ वो मुझे याद रहे. The good news though is I don't really need to, क्योंकि अगर मैं सिस्टेमिक तरीके से इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करता हूँ तो it becomes so much easier for me to recall this information when I actually need it and in the form that I need it. So let's get started. To begin using this system, you have to first and foremost understand कि भाई not all information is created equal. इनफैक्ट मतलब आप सही तरीके की इन्फॉर्मेशन के साथ सही तरीके का प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिंग दैट इन्फॉर्मेशन अगर इस्तेमाल करते हो तो इट बिकम्स सो मच ईजियर फॉर यू टू रिटेन दैट इन्फॉर्मेशन. एंड एट द सेम टाइम इफ यू आर फॉलोइंग अ रॉन्ग प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिंग द इन्फॉर्मेशन, तो इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ डबल एफर्ट. माने कि मैं सेम चीज़ को बार बार रिपीट करूंगा. एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वाई हम एक पेज पूरा पढ़ लेते हैं, पेज के बॉटम पे आते हैं एंड वी रियलाइज कि भाई जो भी पढ़ा था वो याद नहीं है. So let's get started with the first, which is P. Now the P in PACER stands for procedural, and procedural is any information that tells you कि भाई किस तरीके से इस चीज़ को करा जाना है. This can be something like a recipe or simply how you solve math problems. For example,
लुक एट क्वेश्चन नंबर 56 एंड 57. यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली इफ यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन यू विल बी एबल टू गेट इट राइट एवरी टाइम. माने कि अ पर्सन वॉक स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस, टर्न्स लेफ्ट, इतना चलता है, फिर से लेफ्ट चलता है, फिर इतना चलता है. तो एक बार मुझे प्रोसेस समझ आ गया, आई विल बी एबल टू डू दिस. एंड द बेस्ट वे टू रिटेन प्रोसीजरल इंफॉर्मेशन इज थ्रू प्रैक्टिस. माने कि जब भी आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हो, इट इज़ सो मच ईजियर फॉर यू टू रिकॉल दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन. नाउ व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? बिकॉज बहुत बार लोग क्या करते हैं कि वाइल दे आर प्रिपेयरिंग फॉर सीसैट, इस टाइप के क्वेश्चंस वो देखते हैं, वो प्रोसेस को समझ लेंगे एंड दे विल नोट इट डाउन कि अच्छा ऐसे 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 सॉल्व करना है, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली प्रैक्टिसिंग डूइंग दैट क्वेश्चन. दिस लीड्स टू अ लॉट ऑफ डबल एफर्ट. अब बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि भाई अभी जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मुझे प्रैक्टिस करने का समय नहीं है. तो ऐसे में आपको क्या करना है कि ये जो प्रोसीजरल टाइप के इन्फॉर्मेशन है, प्रोसीजरल टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनको आप तब पढ़ो जब आपके पास प्रैक्टिस करने का इनको समय है. क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो इनको रिकॉल आप ज़्यादा आसानी से कर पाओगे एंड यू विल सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम, जो कि पहले पढ़ के और फिर एक महीना बाद जब प्रैक्टिस करने गए तब तक भूल चुके थे, फिर दोबारा पढ़ना पड़ा. यू विल सेव ऑन दैट डबल एफर्ट. एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग इन 2 स्टेजेस कि भाई जब मैं कंज्यूम कर रहा हूँ और जब मैं डाइजेस्ट कर रहा हूँ, मुझे दोनों तरफ अपना दिमाग खुला रखना है. इफ आई एम नॉट एबल टू कंज्यूम अ सर्टन काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अगर अभी कंज्यूम मैंने कर लिया उसको मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूं, तो पुट इट ऑफ. बैलेंस करके चलो इन दोनों चीज़ों को कि आज जो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा उसको बाद में खाना. क्योंकि अदरवाइज क्या करते हैं हम, बार बार सेम चीज़ को पढ़ते रहते हैं एंड दैट लीड्स टू द मेंटल इक्विवेलेंट ऑफ ओवर ईटिंग. एंड जब आप ओवर ईट कर लेते हो तो क्या होता है, देन यू फील लाइक वॉमिटिंग. एंड जो मेंटल प्रोसेस वॉमिटिंग के इक्विवेलेंट आपका यहाँ पे चल रहा है, दैट इज फॉरगेटिंग. यू विल एंड अप कंज्यूमिंग सो मच इंफॉर्मेशन, 90% of which you will forget. And this is not me saying it, this is research. This is known as the Ebbinghaus forgetting curve. तो forgetting curve का मानना ये है, और this theory simply states that आपने आज जो चीज़ पढ़ी है, by tomorrow you will have forgotten 50% of it. And by 30 days you will remember less than 10% of the information that you have read. So it makes so much more sense that we focus a lot more of our time on digesting the information. क्योंकि consumption पे अगर मैं सिर्फ focused रहूँगा तो मैं ये 10 घंटे की पढ़ाई जो है मेरी, 10 घंटे मैंने कंटेंट कंज्यूम किया है, मैंने पढ़ा है, मैंने वीडियो देखी है, कुछ भी किया है, आई एम ओनली एबल टू रिटेन 10% ऑफ इट एंड इफेक्टिवली आई हैव लर्नड 1. मैं इसको 100 घंटे भी कर दूं बट माई एफिशिएंसी इज स्टिल 10% एंड आई विल हैव रिमेंबर्ड द इक्विवेलेंट ऑफ 10 hours ऑफ वर्क. ऑन द अदर हैंड, इफ आई फोकस ऑन इम्प्रूविंग माई डाइजेस्शन, कि मेरा एफिशिएंसी टू रिमेंबर 50% हो जाता है, तो वो 10 घंटे ही मुझे 5 घंटे का आउटपुट दे देगा एंड 20 घंटे मुझे इक्विवेलेंट आउटपुट दे देगा एज 100 hours in the earlier method. So this is why it's important to focus both on consumption as well as digestion of information, which brings us to the next step of PACER, which is A. A का मतलब यहाँ पे है analogous. Now analogous is probably the simplest stage of this PACER, and ये इसका कारण इसलिए है क्योंकि यहाँ पे we are trying to relate the new information that we have learned with something that we already know. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कभी भी अपना पॉकेट मनी मैनेज किया है तो यू बेसिकली अंडरस्टैंड हाउ गवर्नमेंट बजटिंग वर्क्स. फॉर एग्जाम्पल, आपको 1000 रुपए की पॉकेट मनी मिलती है, सरकार को भी टैक्स से कलेक्शन आता है, आप 1000 रुपए ही खर्च कर सकते हो बिकॉज दैट इज ऑल यू हैव. सिमिलरली, गवर्नमेंट कैन ओनली स्पेंड व्हाट इट हैज कलेक्टेड थ्रू टैक्सेस. इन ऑर्डर टू स्पेंड मोर मनी, यू विल नीड टू आइदर इंक्रीज योर पॉकेट मनी or you will need to borrow some money, and those are the same things that the government can do. कि या तो वो GDP ग्रोथ से अपना टैक्स इनकम बढ़ा सकती है, नहीं तो वो बाहर से पैसा उठा सकती है. नाउ पैसा अगर आप उठा रहे हो तो दैट क्रिएट्स अ फ्यूचर लायबिलिटी कि भाई मुझे ये पैसा वापस भी करना पड़ेगा. गवर्नमेंट की बोरोइंग पे उसे इंटरेस्ट देना पड़ता है, एंड अगर मैं ये पैसा वापस नहीं करता हूँ तो अगली बार कोई मुझे पैसा नहीं देगा. सिमिलरली फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो, इफ इट डज नॉट रिटर्न इट्स मनी, तो उसका बॉन्ड रेटिंग खराब हो जाएगा एंड आगे गवर्नमेंट को पैसा बोरो करना और महंगा पड़ेगा. नाउ एनालिगस इंफॉर्मेशन को रिटेन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आई क्रिटिक दिस एनालॉजी. क्रिटिक का मतलब यहाँ पे क्या है, आई शुड ट्राई टू फाइंड लूप होल्स विद इन दिस सिस्टम. ये तो मैंने देख लिया कि भाई कैसे सिमिलर है, कि भाई कैसे मैं अपनी पॉकेट मनी बढ़ा रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, वैसे ही गवर्नमेंट की बजटिंग में भी उनका इसी तरीके से हिसाब चल रहा है. Now, if I have to look at it very, very critically, it will help me retain this information so much better. And you have to be thorough with this process. ऐसा नहीं कर सकते कि भाई थोड़ा सा कुछ सिमिलैरिटी मिल रही थी और मैंने एनालॉजी बना के आगे चल दिया, क्योंकि एनालॉजी अच्छी तब होती है जब मैं अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे नई इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से सीख पाऊँ. एंड in such a case, finding critical angles in this analogy, for example, in this particular example,
Why is it possible for the governments to continue to print money and get away with it, while अगर मैं पैसा प्रिंट करता हूं तो I am jailed for counterfeiting? This helps you understand it better. And जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो, किसी कॉन्सेप्ट या टॉपिक से गुजर रहे हो, creating analogies and actively looking for relating the new information that you are reading with something that you have already learned in the past will help you digest the information so much better. एंड यहाँ पे एक सिंपल सा टेस्ट ये भी हो जाता है कि अगर मेरी एनालॉजी में बहुत सारे लूप होल्स निकल रहे हैं तो मे बी आई नीड टू फाइंड अ बेटर एनालॉजी. नाउ एट दिस पॉइंट यू माइट बी लुकिंग एट द सिस्टम एंड थिंकिंग कि भाई ये बहुत ज़्यादा फोर्स सा लग रहा है, भाई इतनी क्यों बिना बात के हम मेहनत कर रहे हैं, मतलब पढ़ क्यों नहीं सकते हम सीधा. एंड दैट्स वेयर यू हैव टू रियलाइज कि लर्निंग व्हेन इट कम्स डाउन टू इट इज़ हार्ड. लर्निंग आसान नहीं है. जब दिमाग में हम घुसाने की चीज़ करते हैं कोशिश, मेहनत लगती है. एंड द रीजन दिस सिस्टम वर्क्स इज बिकॉज ये मेहनत करने का आपको एक स्ट्रक्चर्ड तरीका दे देता है. नाउ इफ यू हैव नो टाइम प्रेशर या आपको कोई डेडलाइन नहीं है कि भाई एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, बस जनरल फ्री फन फील के लिए पढ़ रहे हो, तो भाई आप रिटेन करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से. बट इन ऑर्डर टू एस कंपेटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, आपको तरीके से काम करना पड़ता है. एंड बहुत बार ये तरीका अगर खुद से हम ढूंढने चले तो हमें बहुत समय लग जाता है. एंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड जहाँ पे दुनिया भर के हमें डिस्ट्रैक्शंस है, दुनिया भर की चीज़ें हमारा अटेंशन खाने के लिए बैठी हुई हैं, it becomes much harder for us to find out how to do the best thing in the right amount of time. And to address exactly these things, we have created the UPSC Essential course. UPSC Essential एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे आपको फेजेस में पढ़ाई कराई जाएगी ताकि आप हर लेवल को अच्छे से मास्टर करके आगे चलो. You are not expected to analyze a topic before you even understand what the concept is. And तरीके से phases में जब आप पढ़ते हो तो it helps you retain more information and give the best outcomes in your preparation. This is a course for people preparing for UPSC in 2026 and it includes a full test series, 3 years of access and mentorship is baked into every aspect of this course. So if you're interested in enjoying this course, you can visit courses.upscprep.com and right now there's also an early bird discount on this course. So to know more about this course, visit courses.upscprep.com. Now वापस आते हैं पेसर पे. पेसर में C stands for concepts, conceptual information. This is most of the information that you will be encountering in your general studies subjects. Now जो conceptual information हमारी होती है, it can be facts, theories, ideas, explanations, principles. It can involve relationship between concepts and ways that concepts can be applied. And in most cases, आपको प्रोसीजरल और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दोनों चाहिए इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक दिस क्वेश्चन फ्रॉम मेंस 2021, why do large cities tend to attract more migrants than smaller towns? Discuss in the light of conditions of developing countries. तो यहाँ पे मुझे कॉन्सेप्ट तो पता ही होने चाहिए, बट आई शुड ऑल्सो नो द प्रोसेस ऑफ आंसर राइटिंग एंड फ्रेमवर्क्स. क्योंकि अगर मुझे ये दो प्रोसेस आती हैं तो आई कैन मेक माई आंसर मच मोर प्रेजेंटेबल एंड गेट मच हायर मार्क्स फॉर इट दैन आई वुड इफ अगर मैं जनरल आंसर यहाँ लिख के आ जाता. सो कंसेप्चुअल टाइप इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा क्या प्रोसेस रहता है? यहाँ पे हमें करनी है माइंड मैपिंग. माइंड मैपिंग हमें क्यों करनी है? बिकॉज कॉन्सेप्ट्स आर जनरली इंटर रिलेटेड एंड यू माइट हैव हर्ड दिस अलॉट कि भाई मेंस के लिए आपको इंटर कनेक्शंस बनाने हैं बिटवीन सब्जेक्ट्स. तो इंटर कनेक्शंस ये ऑटोमेटिकली नहीं बनते, ये हमें एफर्ट डालना पड़ता है, माइंड मैप्स बनाने पड़ते हैं एंड you have to put in that effort in order to understand how this concept is interlinked with all of the others. Because once you have put in this effort, तो मेंस में आप सरप्राइज नहीं होते हो, क्योंकि मेंस में बहुत बार ऐसा होता है कि 3 कॉन्सेप्ट्स को इंटर रिलेट करके आपसे सवाल पूछा जाएगा एंड इफ यू आर नॉट क्लियर ऑन द कॉन्सेप्ट्स इटसेल्फ और द इंटरकनेक्शंस, इट विल बिकम वेरी हार्ड फॉर यू टू राइट दैट आंसर. नाउ यहाँ पे बहुत सारे लोग एक शॉर्टकट लेने लगते हैं. वो करते क्या है कि मैं ABC इंस्टीट्यूट से या आजकल ChatGPT से एक माइंड मैप बनवा के ले लेता हूँ और उसको रख लेता हूँ. But that is not going to work so long as you have not put that mind map through your brain. आपने उस पर काम नहीं किया है, आपने अपने दिमाग को नहीं दौड़ाया है. That mind map is going to be useless. You have to put in the effort of making that mind map yourself. या फिर अगर डाउनलोड भी कर लिया तो एक्चुअली उसको दोबारा अपने आप से रिक्रिएट करने की कोशिश करो. Only then will that information stick in your head, will that concept become clarified in your head. यहाँ पे एक और गलत फहमी लोगों की रहती है कि concept is just a definition, कि मैं word by word एक definition को याद कर लूँगा तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि that is how we are taught. बुक में लाइन बाय लाइन चीज़ लिखी हुई है, क्लास में हमें लाइन बाय लाइन जो सामने पढ़ा रहा है वो बता रहा है, एंड ऐसे में हमें जो उनके दिमाग में इंटर कनेक्शंस एंड माइंड मैप्स बने हुए हैं वो दिखाई नहीं देते हैं. एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इंटर कनेक्शंस ही हैं. अगर मैं एक्चुअल डेफिनेशन भूल जाता हूँ, वर्ड बाय वर्ड मुझे नहीं याद है, बट मुझे मीनिंग एसेंस याद है उसका, तो आई कैन रिक्रिएट दैट डेफिनेशन बिकॉज आई नो हाउ टू गेट देयर. दिस इज योर जॉब.
आपको वर्ड बाय वर्ड डेफिनेशन याद नहीं करनी है, आपको अपने दिमाग में ये इंटरकनेक्शन बनाना है, आपको अपने दिमाग में क्लैरिफाई करना है कि ये कॉन्सेप्ट और कितने कॉन्सेप्ट से इंटरलिंक्ड है, कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पे अच्छा रहेगा एंड किस तरीके से ऑल ऑफ दिस कनेक्ट्स टू द लार्जर पिक्चर। एंड वी हैव टू बी पेशेंट विद दिस प्रोसेस, क्योंकि जब शुरू में हम तैयारी कर रहे होते हैं तो इन्फॉर्मेशन ऐसे थोड़ा पॉइंट्स में हम ऐड कर रहे होते हैं, बट ओवर टाइम द इंटरकनेक्शंस बिटवीन आवर नॉलेज ग्रो and we are able to connect multiple concepts together and use them to produce the best output for ourselves. Now यहाँ पे भी बहुत लोगों का डाउट रहेगा कि भाई if I don't have the time to make mind maps, what do I do? How do I understand the concepts? The point is again, you have to balance consumption and digestion. अगर मैं digest नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे फिर से any which way जाके वो concept दोबारा सीखना ही पड़ेगा. एंड दिस इज़ वॉट आई सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डूइंग कि भाई अभी उन्होंने जल्दी में चीज़ें पढ़ ली हैं एंड डाइजेस्ट नहीं करी हैं, अब 2 महीने बाद जब वो वापस जाते हैं उस किताब को पढ़ने तो देन देयर लाइक कि भाई मुझे कुछ भी याद नहीं है। क्यों? क्योंकि यू डिड नॉट डाइजेस्ट द इन्फॉर्मेशन दैट यू टुक। स्लो डाउन, कंजम्पशन को रोको, digestion को बढ़ाओ. Now, another thing that you need to keep in mind with analogous information is that analogous kind of information can be both procedural as well as conceptual. माने कि हर टाइप की इंफॉर्मेशन को आप analogy से सीख सकते हो. So don't think कि मैं क्रॉस अप्लाई इन informations को नहीं कर सकता हूँ. If there is a previous concept that is helping you learn a new concept, तो then even conceptual information can be made simpler through analogy. Now, the good news is कि जो procedural, analogous and conceptual information है, these are the most time consuming both physically and mentally. तो ये चीज़ें हो गई हैं, अब आते हैं हम E and R पे. बट द बैड न्यूज़ इज़ कि E and R में बहुत सारा रट्टा है. पेसर का हमारा जो E है, दैट इज़ एविडेंस और एग्जाम्पल्स. तो एविडेंस एंड एग्जाम्पल्स है क्या, इसे समझते हैं. एविडेंस एंड एग्जाम्पल्स आर थिंग्स दैट हेल्प यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स बेटर. अभी तक इस वीडियो में जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स आपको दिए, दोज वर एम्ड एट हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड कि भाई प्रोसीजरल नॉलेज क्या होती है. इट इज़ अ रेसिपी, यू नीड टू प्रैक्टिस दैट रेसिपी. अगर डोसा बनाने का रेसिपी मैंने पढ़ लिया और उसको प्रैक्टिस करके नहीं देखा तो इट इज़ अनलाइकली दैट आई विल बी एबल टू मेक अ डोसा. इफ आई हैव मेड अ डोसा बिफोर, इट इज़ मच मोर लाइकली दैट आई विल बी एबल टू मेक इट अगेन. एनालॉगस इन्फॉर्मेशन, मैंने अपना बजट मैनेज करा था, मैंने सरकार का बजट मैनेज करना सीख लिया है. कंसेप्चुअल माइंड मैपिंग, ये विद प्रैक्टिस हम जब इंटरकनेक्ट करते हैं चीज़ों को, वी लर्न सो मच बेटर. सो दीज आर एविडेंस एंड एग्जाम्पल्स दैट आर हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर. एंड द प्रोसेस फॉर एविडेंस एंड एग्जाम्पल टाइप इंफॉर्मेशन इज टू स्टोर एंड रिवाइज. स्टोर एंड रिवाइज का यहाँ पे सिंपल सा आइडिया है कि इसको मैं तरीके से नोट डाउन करूँ एंड बार बार उसे रिविजिट करूँ. फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग माई मेन्स प्रिपरेशन I had created this fact sheet which is available on our website. You can visit upscprep.com and search for mains fact sheet. तो इस फैक्ट शीट में मैंने क्या किया है, मैंने बहुत सारे फैक्ट्स लिख लिए हैं जो कि SDGs के हिसाब से मैंने ऑर्गेनाइज फिर कर दिए हैं. क्यों? क्योंकि SDGs के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे हर पेपर में आते हैं, GS 1, 2, 3 एंड समटाइम्स इवन 4. तो इन सच अ केस आई हैव अ लॉट ऑफ एविडेंस इंफॉर्मेशन जो कि जहाँ पे मेरा पॉइंट मुझे स्ट्रेंथन करना है उसके बाद मैं इसको लगा दूंगा. एंड द बेस्ट वे टू गो अबाउट दिस इज अ लॉट ऑफ रिविजन के साथ साथ एक्टिव रिकॉल के साथ साथ फ्लैश कार्ड्स अगर आप यूज़ करते हो, निमोनिक्स अगर यूज़ करते हो, तो ऑल ऑफ दीज आर ग्रेट वेज टू रट्टाफाई दिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये रटनी ही पड़ेगी. नाउ अनदर ग्रेट वे टू रिटेन दिस सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज टू टीच इट टू समबडी एल्स. क्यों? क्योंकि जब मैं किसी और को कुछ पढ़ा रहा होता हूं तो मुझे जब एग्जाम्पल्स देने पड़ रहे हैं तो आई नो वेयर टू यूज दिस एग्जाम्पल. This is the practice of retrieval. I have to practice retrieving these examples with the right arguments in order for them to stick in my head. कि अब जैसे मैंने आपको personal budgeting and government budgeting वाला example दे दिया, so this is an example that will be stuck in my head and I will be able to use whenever somebody asks me कि भी government budgeting कैसे होती है. Now the key point to remember over here कि store and retrieve. स्टोर हमें कब करना है, जैसे ही हम चीज़ इसको पढ़ रहे हैं हम इसको स्टोर कर दे कि अच्छा ये GS 1 के इस पर्टिकुलर सेक्शन में डाल के मैंने छोड़ दी. मैंने अपने लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाया हुआ था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हिसाब से. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्योंकि मुझे वो भी रटने थे तो मैंने वो रट लिए. तो मुझे अर्बनाइजेशन से रिलेटेड कोई पॉइंट मिलता है, मैं SDG 11 के अंडर उसको डाल देता हूँ. बट यू डोंट हैव टू प्रैक्टिस रिट्रीविंग देम एट द सेम टाइम. दोज थिंग्स कैन बी सेपरेटेड. स्टोर जैसे मैं चीज़ें कर रहा हूँ साथ ही साथ मैं उसे करता रहूँ. रिट्रीव प्रैक्टिस माने कि कहाँ उसे यूज़ किया जाएगा वो मैं बाद में भी कर सकता हूँ. क्योंकि लास्ट के जो दो ये सेक्शंस हैं E एंड R, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन को अगर मैं बार बार रीड करता रहूँगा तो मेरा बहुत सारा समय इसी में चला जाएगा, जो कि मुझे आइडियली देना चाहिए अपनी P, A एंड C वाले एरियाज़ में. मीनिंग प्रोसीजरल इन्फॉर्मेशन
एनालॉगस इन्फॉर्मेशन एंड कंसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन, उन चीज़ों पे मैं 80% अपना टाइम दूँ एंड 20% ऑन दिस, that will lead to much better learning outcomes for me in the long run. Which brings us to the last type of information, which is R. R यहाँ पे क्या है, हमारी ये reference information है. Now reference and example evidence वाली जो information है, this is very similar and sometimes यू कैन गेट कन्फ्यूज कि भाई अच्छा इसको आर में डालना है या ई में डालना है. इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या है वो समझते हैं. एविडेंस टाइप जो हमारी इन्फॉर्मेशन थी दैट इज हेल्पिंग मी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर, बट रेफरेंस टाइप इन्फॉर्मेशन जो है दैट इज जस्ट रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट एंड इट इज नॉट एडिंग एनीथिंग. फॉर एग्जाम्पल, द सुप्रीम कोर्ट गेव द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इन द केशव नंदा भारती केस. केशव नंदा भारती केस इंपॉर्टेंट है मेरे लिए याद रखना, बट जस्ट ये नाम मुझे कुछ नहीं बता रहा है कि भाई व्हाट एग्जैक्टली इज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन या किस लॉजिक से बेसिक स्ट्रक्चर को बोला गया था. केशव नंदा भारती इज जस्ट अ रेफरेंस पॉइंट, इंफॉर्मेशन विच आई हैव टू रिकॉल और यूज इन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट विदाउट इट एडिंग एनी एविडेंशियरी वैल्यू. एविडेंशियरी वैल्यू का मतलब कि ये मेरे पॉइंट को स्ट्रेंथन नहीं कर रहा, ये बस एक और चीज बोल रहा है कि भाई दिस इज ऑल्सो relevant over here. And the process to deal with reference type information is the same as the process to deal with evidence and example type information, which is that you store and you practice retrieving them. जस्ट यहाँ पे रिवाइज एंड रिट्रीवल प्रैक्टिस जो हमारी हो रही है वो थोड़ी और अलग है. जैसे प्रीवियस केस में मैं एग्जाम्पल दे के खुद समझ रहा था एंड आगे समझा भी पा रहा था. रेफरेंस चीज बस प्रॉपर रटने के लिए है. जैसे रेफरेंस टाइप इन्फॉर्मेशन को अगेन मैंने पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे स्टोर कर लिया था. जहाँ पे भी मुझे केस मिलता था, फॉर एग्जाम्पल आई एम रीडिंग अ केस इन द न्यूज़पेपर एडिटोरियल, या मैंने किसी किताब में पढ़ा या कहीं पे भी मैंने इस चीज़ का रेफरेंस सुना, तो मैंने उठा के बस उसको अपने इस डंप में डाल दिया. एंड जब मैं बाद में इन चीज़ों को रट्टा मारने जाऊँगा तो जब भी मुझे जुडिशियल एक्टिविज्म के एग्जाम्पल्स या रेफरेंस देने हैं, देन आई हैव द नीलावती बेहरा केस, हुसैन आरा खातून केस, अश्विनी उपाध्याय केस, अर्जुन गोपाल केस. जब मैं इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इतने तरीके से रिकॉल एंड यूज कर पाता हूँ तो इट गिव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन टू द एग्जामिनर. नाउ अ लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू गो राइट इन ऑर्डर टू बी एबल टू memorize and recall a lot of information in a short span of time, which is generally the problem that people face in prelims and in mains preparation. But ऐसे में अगर आप रेफरेंस टाइप इन्फॉर्मेशन को बार बार पढ़ के अभी के अभी रट्टा मारने की कोशिश कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द प्रोसीजरल, ऑन द एनालॉगस एंड ऑन द कंसेप्चुअल टाइप इन्फॉर्मेशन, तो भाई आपसे बड़ा गुनहगार इस जगह पे कोई नहीं है. एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जैसे ही मैं बिना सोचे समझे चीज़ें रटने पे आ गया तो my learning efficiency goes out of the window. So with that, we'll end this video. We have identified 5 different types of information and जब आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते हुए आपको ये recognize करना है कि मैं किस टाइप की information को अभी consume कर रहा हूँ. And then I have shared targeted processes जो आप apply कर सकते हो in order to maximize your retention and recall for each particular kind of information. That will be all for this video. All the best.